Hello students. So uh, this is lecture 2. So in last class we discussed about the basics of microprocessors and microcontrollers. Okay, and we discussed about the application of microprocessors and microcontrollers. You have got an idea that we are going to study 8086 microprocessor and 8051 microcontroller. So 8086 और 8051 ये आपके सिलेबस में बेसिकली. So we are going to discuss the architecture of microprocessor 8086, different type of addressing mode, instructions, programming, and in next finally we will discuss the interfacing of peripheral devices. So what are peripheral devices? Suppose this is microprocessor, okay, and microprocessor is and this is memory, okay, and to store the data memory is required, and similarly IO devices are also required. So these are connected like this, okay. So this input output and memory devices, so these are called peripheral devices. So these input output devices or memory are connected with the microprocessor. So the technical word is what? Interfacing with the microprocessor. So in section B we will also study about the interfacing of memory devices and input output devices. So today we will discuss about the just introduction of the operations of microprocessor. So what are the operations? Those are being performed by the microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर इट मीन्स म्यूचुअली हम 8086 के बारे में ही बात कर रहे होंगे. जब भी मैं आगे बोलूंगा माइक्रोप्रोसेसर तो इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट द 8086. ओके. So the operations performed by the microprocessors, the first operation is what? Microprocessors initiated operations. Suppose there are some operations, those are initiated by the microprocessor itself. So these operations are called microprocessors initiated operations. Then second is called internal operations. There are some internal operations, though it means it doesn't require any peripheral devices. Okay, one more thing, suppose without connecting the memory and input output IO devices, the microprocessor can't perform its task. But there are some operations during performing these operations, these peripheral devices are not required. So these operations are called internal operations of the microprocessor. So first one is some microprocessors initiated operations, okay, and next is internal operations. So in this internal operations, the peripheral devices are not required. Then next, externally initiated operations, externally or peripheral initiated operations. So these are the operations by the memory or input output. Okay, so first we will discuss the memories initiated operations. So first is microprocessors initiated operations. So these operations are initiated by the microprocessor itself. So what are these operations? First is memory read, memory write. Actually we have memory or input output as a peripheral devices. Okay, so whenever we want to read the memory, okay, so first the operations is what? Memory read. It means we want to access the memory, okay. Then memory write operations, then input output read. Obviously input devices से होगा read, ये output write. Okay, so these are the basic operations, those are initiated by the
microprocessors. So next is how to perform these operations. कौन से operations? Microprocessors initiated operations. So microprocessor initiated operations में memory read, memory write, input output read, input output write. So basically हम अभी study करेंगे कि basically ये operations हम किस तरह से perform करते हैं. How these operations are being performed. So first step is what? These are the steps, how these operations are being performed. So first operation is identify the memory or input output with its address. Suppose what we want, so memory initiated operation is what? Memory read, memory write, input output read, or input output write. Okay, so first step is what? First identify the memory or input output address, where find out the location of memory or input output address, so that we can write the memory, read the memory. Okay, similarly for the input and output. Okay, this is like a suppose कोई डिलीवरी मैन है और उसको कोई चीज़ कहीं पे आपको डिलीवर करनी है घर पे, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा? उसके पास में सामान तो है, बट वो पहले क्या करेगा? घर और एरिया आइडेंटिफाई करेगा, एड्रेस आइडेंटिफाई करेगा, हाउस नंबर आइडेंटिफाई करेगा कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली. सो सिमिलरली दिस इज like the same operation, identify the memory and input output with its address. And next question arises, how to do it? So who will do it? So basically this operation is performed by the address bus. So this is what? By address bus. So basically address bus required है इस चीज के लिए. और in 8086 microprocessor we have 20-bit address bus. Okay, so 20-bit address आपके पास में है. So basically total number of combinations कितने हो गए bits के? तो वो हुआ आपका 2 to the power 20. Okay, right? So these are the address bus is required to identify the memory or input output with its address. Next step is, after identifying the address of the memory or input output, generate or provide the synchronization signal. Okay, what you want to do basically. Okay, either you want to read or write. So for that, after identifying the address of memory and input output, so it become necessary, so that what you want to do, whether you want to read the memory or write the memory. So for that, generate or provide the synchronization signal. Okay, so let me explain you. Suppose that there is a signal RD is equal to 0. So what is the meaning? Suppose we want to perform the read operation. So this is low active signal. So you should know what is low active और एक्टिव हाई, एक्टिव लो, ये पता होना चाहिए आपको. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने स्टडी भी किया है बेसिकली. सो एक्टिव लो का मतलब वो सिग्नल एक्टिव होगा जब आप उसको लो इनपुट प्रोवाइड करोगे. एक्टिव हाई का मीनिंग होगा वो एक्टिव होगा कब? जब आप उस पर हाई आउटपुट, हाई लेवल का आउटपुट आप अप्लाई करेंगे. तो आरडी, अभी मैंने कहा दिस आरडी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स रीड ऑपरेशन लो एक्टिव है, तो इट मीन्स रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इस पे. सो जब भी आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो इट मीन्स रीड आरडी मस्ट बी 0. इफ सपोज आरडी इज इक्वल टू 1, देन नो रीड ऑपरेशन. Okay, similarly for the write, if write is equal to 0, then it means write operation. And W bar is equal to 1, then it means no write operation.
Okay. And this is all about the read and write. And next, suppose what we have memory and input output devices. So suppose there is a common signal, so that is what we want to do. So actually we have a memory or input output, and we can do the read and write for the memory and input output. So a common signal is differentiating that uh, in which we want to read or write. So that is M, IO bar. Okay. So suppose M is equal to 1, then it means memory related operations perform होंगे, right? और मेमोरी आपने सेलेक्ट कर रखा है, मीनिंग ये हुआ इसका. और इफ सपोज 0, देन इट मीन्स कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं. और ऑपरेशंस बेसिकली कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो आप बेसिकली या तो रीड करोगे या फिर राइट करोगे. बेसिकली आप दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं बेसिकली. ओके. सो वी हैव two signals. So first is what, M slash IO bar. So ये बेसिकली क्या आइडेंटिफाई करेगा, इफ इट इज 1 इट मीन्स मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन हो रहा है, और इफ सपोज इट इज 0 देन इट मीन्स कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन हो रहा है. ओके. एंड नेक्स्ट सेकंड इज व्हाट, रीड. सपोज आप रीड आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, मैं रीड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, RD. सो रीड ऑपरेशन कब होगा, जब आपको यहाँ पे 0 मिलेगा. सो देर आर टू इन सिग्नल्स. सपोज it may be 0, it may be 0. So it may be 0, it may be 1, it may be 1, it may be 0, and both 1 1. Okay. So okay, what operation you want to perform, operation basically कौन सा perform होगा, memory read का. तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि memory read. Okay, MR. Okay. So 0, M is 0, it means मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन होगा, मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन होगा, नो. 0 मीन्स इनपुट आउटपुट से रिलेटेड होगा. लेकिन आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बेसिकली आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है मेमोरी से रिलेटेड. ओके. बट यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट हुआ है, इफ I नॉट इज इक्वल टू 0 आपने सेलेक्ट कर रखा, ये 0 सेलेक्ट कर रखा है, इट मीन्स इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन सेलेक्ट होगा. देन रीड इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ओके रीड तो होगा, बट कौन सा रीड होगा, इनपुट आउटपुट रीड होगा. तो इट मीन्स MR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, बिकॉज दिस इज आल्सो लो एक्टिव सिग्नल, दिस इज आल्सो लो एक्टिव सिग्नल. ओके. देन M इज इक्वल टू 0, देन अगेन कौन सा सेलेक्ट किया आपने, इनपुट आउटपुट सेलेक्ट किया. अगेन रीड इज इक्वल टू 1, तो रीड तो ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे अगेन क्या होगा, 1. देन फॉर द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन M इज इक्वल टू 1. अब की बार आपने मेमोरी को सेलेक्ट कर लिया है और यही आपका ऑब्जेक्टिव था. ओके. देन अगेन RD बार इज इक्वल टू 0, इट मीन्स रीड ऑपरेशन, और ये रीड ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना था. इट मीन्स सेलेक्ट भी मेमोरी हुआ है और ऑपरेशन भी आपको रीड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0. ओके. देन फॉर द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन M इज इक्वल टू 1. ओके, मेमोरी आपने सेलेक्ट कर रखा है, मेमोरी से रिलेटेड ही आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है. बट RD बार इज इक्वल टू 1. RD बार इज इक्वल टू 1 में मैंने क्या बताया था, नो रीड ऑपरेशन. ओके. सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दिस इज 1. ओके. और सपोज आप जब आपको फाइंड आउट करना हो कि व्हाट इज MR बार इज इक्वल टू कैसे, तो वही तरीका कि बेसिकली आप क्या करो, एक के मैप बनाओ. के मैप किस किस में बनाओगे, बेसिकली ये के मैप बन जाएगा आपका, और के मैप बनेगा किसमें, इसमें और RD बार में. RD बार यहाँ आएगा. ओके. सो दिस विल बी व्हाट, 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1. अगेन 0 0 का ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, दिस इज व्हाट 1. देन अगेन ये लिख दिया है यहाँ पे 1,
देन अगेन यहाँ पे लिख दिया आपको 0, देन अगेन यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। ओके, देन अगेन नेक्स्ट क्या होगा, आपको ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग आपको ये लो ग्रुपिंग, और नेक्स्ट ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये नेक्स्ट ग्रुप हो जाएगा आपका। तो आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो कि व्हाट इज एम आर बार। सो एम आर बार विल बी व्हाट, एम आई ओ बार। इसके लिए लिख सकते हैं, फर्स्ट के लिए 0 है तो इट मीन्स दिस विल बी व्हाट, बार। देन प्लस अगेन सेकेंड ग्रुप, इस ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली इस ग्रुप के लिए हो जाएगा आपका आर डी बार। ओके, सो दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन टू इम्प्लीमेंट दिस। सो आपको बेसिकली क्या रिक्वायर्ड है, एक और गेट रिक्वायर्ड है, जहां पे आपको इनपुट में आपको आर डी बार और एम आई नॉट बार ये मिलेगा, और इसका आप ये क्या ले लीजिए, एक इन्वर्ट कर दीजिए इसको। ओके, सो बेसिकली ये आपका लॉजिक सर्किट हो जाएगा। सो इजीली आप डिजाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, हो जाएगा। तो चलो बना देता हूं मैं। ओके, और ये आपका नॉट गेट, और ये आपका दूसरा इनपुट। तो सपोज ये अगर आपका है आर डी बार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम एम आई नॉट बार। सो यहाँ से इसका आपको इन्वर्ट मिलेगा, और यहाँ आपको ये सिग्नल मिल जाएगा क्या, मेमोरी रीड। सो मेमोरी रीड का एक बेसिकली एक सिग्नल डिफाइन करते हैं, उसको लिखते हैं हम एम ई एम आर। ओके, सिंपली सब सेम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। सो इसको डिफाइन करते हैं किससे, एम ई एम आर बार। सो अभी आपने क्या किया, मेमोरी का रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया। सिमिलरली सपोज आपको अगर आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो राइट ऑपरेशन के लिए भी बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑपरेशन के लिए भी हो जाएगा जैसे आपने अभी किया है रीड के लिए। सिमिलरली क्या कर सकते हो, राइट के लिए भी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये आप कर सकते हो, घर पे करके देखो आप और निकालो आंसर, इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये आप बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आर डी जहाँ आर डी बार इज इक्वल था वो अभी रीड के लिए, तो ये बेसिकली राइट के लिए करना है तो डब्ल्यू आर बार हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे एम आर था जहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू, बिकॉज आपको क्या करना है, राइट करना है बेसिकली। सो सिमिलरली यहाँ पे आप ये लॉजिकल एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो कोई किस टाइप का होगा, और आपको इजीली आप इसको कर सकते हो इजीली। ओके, सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज व्हाट, परफॉर्म द डाटा ट्रांसफर। परफॉर्म द डाटा ट्रांसफर। सो डाटा ट्रांसफर, बेसिकली डाटा ट्रांसफर कौन सी बस का यूज होगा, बेसिकली डाटा ट्रांसफर के लिए यहाँ पे आपको डाटा बस, बेसिकली कौन सी बस से आपका डाटा आपका ट्रांसफर करोगे, डाटा बस। बेसिकली डाटा बस ही डाटा को कैरी करती है, तो डाटा बस यहाँ पे कितनी बिट की डाटा बस है, 16 बिट की डाटा बस है, राइट। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस, these are initiated by the microprocessor. So microprocessor initiated operations, memory read, memory write, आपने अभी स्टडी किया हमने, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। सो बेसिकली स्टेप थे परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट तो था कि आप एड्रेस आइडेंटिफाई करो, देन सेकंड क्या करो, सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जनरेट करो, और देन थर्ड क्या करो, आप डाटा को ट्रांसफर करो। सो दीज आर द स्टेप थ्रू विच we can the microprocessor perform the microprocessor initiated operations. So next we will study, so next is internal operations. So first हमने अभी स्टडी किया microprocessors initiated operations, then next
internal operations. So internal operation means these are some there are some basic operations. Those are not required the peripheral devices, means memory devices or input output devices इन operations में required नहीं है basically. So कौन कौन से ऐसे operations है basically? First is stores the data. So basically ये stores data storage किस चीज की हेल्प लेके डाटा को स्टोर करेंगे बेसिकली. सो बेसिकली डाटा हम स्टोर करेंगे बेसिकली रजिस्टर की हेल्प से. और रजिस्टर बेसिकली क्या होते हैं कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. बेसिकली रजिस्टर आपने पढ़ा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में. सो सपोज 4 बिट का रजिस्टर है, तो 4 बिट का रजिस्टर होगा तो क्या होगा कि 4 फ्लिप फ्लॉप कुछ एक प्रॉपर मैनर में एक कनेक्टेड होंगे और उसको बोलेंगे आप रजिस्टर. मीन्स 4 बिट सिंगल फ्लिप फ्लॉप में एक फ्लिप फ्लॉप इज व्हाट ओनली 1 बिट मेमोरी एलिमेंट. सो 1 बिट इसमें आप स्टोर कर सकते हैं. 4 बिट का रजिस्टर मीन्स 4 बिट का डाटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं. सो फर्स्ट इंटरनल ऑपरेशन इज स्टोर्स डाटा. सो स्टोर करने के लिए बेसिकली रजिस्टर रिक्वायर्ड होंगे. बेसिकली आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बेसिक रजिस्टर्स हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में. The next, perform the arithmetic and logical operations. So arithmetic and logical operations किसका हेल्प लेके और बिकॉज कौन सा हार्डवेयर आपको रिक्वायर्ड होगा बेसिकली, क्या चीज रिक्वायर्ड है इसके लिए. सो इसके लिए बेसिकली एक ALU रिक्वायर्ड है. ओके, arithmetic that will perform the arithmetical and logical operations. Then next, testing for the conditions. इसका मीन सपोज आप कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, डाटा भी स्टोर कर रहे हो, आप अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हो, तो अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट की कंडीशंस के बेसिस पे उसको टेस्ट करोगे बेसिकली कि रिजल्ट. तो उसके लिए बेसिकली स्पेशल टाइप का कुछ एक रजिस्टर टाइप ही है, उसको बोलते हैं फ्लैग. सो फ्लैग इज रिक्वायर्ड. सो आगे हम स्टडी करने वाले हैं बेसिकली. ओके, तो सो फ्लैग, सो बेसिकली कंडीशन की टेस्टिंग के लिए बेसिकली रिक्वायर्ड है क्या, फ्लैग. सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है. सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सपोज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने सीरियली कुछ इस तरह से लिख रखे हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड, फोर्थ. सपोज किसी एक 4 इंस्ट्रक्शन एक आपने कुछ लिख रखे हैं और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने इस तरह से कुछ लिख रखे हैं कि कोई आपको टास्क परफॉर्म करवाना है और इसी को क्या बोल देते हैं, प्रोग्राम बोल देते हैं. आपने इसी को तो प्रोग्राम बोलते हैं. प्रोग्राम में क्या होगा बेसिकली बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखे होंगे, पर्टिकुलरली कोई टास्क आपको परफॉर्म करवाना होगा, राइट. सो ये किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो किस सीक्वेंस में ये आपके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं. सो सीक्वेंस, इसके लिए बेसिकली एक स्पेशल टाइप का एक पॉइंटर रिक्वायर्ड होता है जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, IP. ओके, तो 8085 में जैसे प्रोग्राम काउंटर होता है, वहां पे प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, सपोज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद में सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, बेसिकली इंस्ट्रक्शन साइकिल, हर इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन साइकिल फॉलो होगा. सबसे पहले क्या होगा, फैचिंग होगी. सेकंड क्या होगा आपका, डिकोडिंग होगी. देन थर्ड क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा. ये 3 स्टेप फॉलो होंगे कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो बेसिकली, और इसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल. सो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि बेसिकली फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट में एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने वाला है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास रहता है. सिमिलरली 8086 में भी क्या रहता है, वो जो एड्रेस होगा वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास रहेगा. सपोज पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है. सो नेक्स्ट सेकंड इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है, तो सेकंड इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है बेसिकली वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास होगा. अगेन जब सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब इसके पास में थर्ड इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस होगा बेसिकली. सिमिलरली थर्ड अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस टाइम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फोर्थ का एड्रेस रहेगा इसके पास में. ओके, अभी आगे और डिस्कस करेंगे बेसिकली. नेक्स्ट इज स्टोर द डाटा टेम्परेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन.
तो सपोज समटाइम्स आपको कुछ आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो या कुछ ऑपरेशंस अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो उस टाइम बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है कि टेम्पररी जो डाटा आर ऑपरेशंस के टाइम उस डाटा आप प्रोड्यूस हुए, कोई रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो उसको मेन मेमोरी में आपको फाइनली उसको स्टोर ना करके टेम्पररी आप उसको स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे स्टोर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ओके, आगे पढ़ेंगे बेसिकली स्टैक है क्या। सो दीज आर द इंटरनल ऑपरेशंस एंड दीज आर द टूल्स दोज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द इंटरनल ऑपरेशन। लाइक स्टोर द डाटा मीन्स रजिस्टर रिक्वायर्ड है इसके लिए, राइट। और सब अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए आपको एएलयू रिक्वायर्ड हुआ, टेस्टिंग फॉर कंडीशन के लिए फ्लैग रिक्वायर्ड हुआ, सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इसके लिए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, एंड स्टोर द डाटा टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए बेसिकली आपको ये स्टैक रिक्वायर्ड है। सो नेक्स्ट स्टडी करते हैं स्टोर द डाटा, डाटा को किस तरह से स्टोर करते हैं बेसिकली। सो नेक्स्ट इज स्टोर्स द डाटा। सो इंटरनल ऑपरेशंस में फर्स्ट आपका स्टेप है स्टोर्स द डाटा। ओके, सो स्टोर्स द डाटा, डाटा आप स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स, अभी डिस्कस किया था हमने। और रजिस्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप 1 2 3 4 कुछ इस तरह से 1 2 3 4। ओके, सो रजिस्टर्स। ओके, सो रजिस्टर में रजिस्टर को डिवाइड करते हैं बेसिकली। फर्स्ट रजिस्टर हुआ आपका जनरल पर्पज रजिस्टर। फर्स्ट कैटेगरी है रजिस्टर में जनरल पर्पज रजिस्टर। ओके, सेकंड कैटेगरी हुआ आपका बेस और इंडेक्स रजिस्टर। ओके, सो जनरल पर्पज रजिस्टर में कौन कौन से रजिस्टर आते हैं, चलो देखते हैं। ए एच ए एल बी एच ए, ओके, बी एल सी एच सी एल डी एच डी एल। ओके, so the AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH and DL। ओके, तो ये बेसिकली इनको बोलते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। सो AH और AL दोनों को कंबाइन करके बनता है आपका क्या? A of X। सिमिलरली BH और BL कंबाइन करके आपको बनता है क्या? B of X। ओके, CH और CL बेसिकली बनता है C of X। ये DH और DL बनता है बेसिकली आपका DX। ओके, तो ये बेसिकली जस्ट केवल एक ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको, इनके बारे में और आगे स्टडी करेंगे। बेसिकली इनका पर्पस पढ़ेंगे आगे कि A B C D बेसिकली इनका कुछ पर्पस है, उसी बेसिकली हम इसको यूज करते हैं, राइट। तो AH ये जो होगा AH, ये आपका AH AL ये आपका 8 बिट का रजिस्टर है। सिमिलरली BH भी कितना? 8 बिट का रजिस्टर है। CH भी 8 बिट का रजिस्टर। DH AL इज आल्सो 8 बिट रजिस्टर। BL इज आल्सो 8 बिट। दिस इज आल्सो 8 बिट एंड 8 बिट। 8 बिट और 8 बिट दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो ये बेसिकली ये कितने बिट का रजिस्टर बन जाएगा? आपका 16 बिट का रजिस्टर बनेगा। सिमिलरली BX भी 16 का, CS भी 16 और DX भी 16 का। सो बेसिकली यहाँ पे समझते हैं AX। सो AX जो 16 बिट का रजिस्टर है, उसको उसका जो लोअर बिट है उसको बोल देंगे हम क्या? A of L, A का लोअर। ओके, A of हाई तो A का हाई। ओके, सिमिलरली B C एंड D। सो ए बेसिकली 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट के जनरल रजिस्टर हैं। तो जनरल रजिस्टर को बेसिकली इस तरह से भी लिख सकते हैं आप 88 बिट की फॉर्म में AH AL BH BL। और A
ए एक्स जो रजिस्टर है या ए एक्स या ए एल ए एक्स, ये बेसिकली अक्यूमुलेटर के लिए यूज होते हैं। कोई भी बेसिक ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, सो इसका यूज करके ही हम परफॉर्म करने वाले हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ इस टाइप का। ठीक है, वो हम इंस्ट्रक्शन जब स्टडी करेंगे तो मैं आपको और भी बताऊंगा और भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या पर्पज है बी का, सी का, डी का बेसिकली। ओके, सो जस्ट केवल एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज बेस और इंडेक्स रजिस्टर। सो बेस और इंडेक्स रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, चलो देखते हैं। बेस और इंडेक्स, बेसिकली फर्स्ट वन इज BP and that is what, base pointer, base pointer. Okay, and next is what, SP, कौन सा पॉइंटर होगा ये, स्टैक पॉइंटर। अभी डिस्कस किया था कि स्टैक क्या होता है, बेसिकली डिस्कस किया था इंटरनल ऑपरेशंस में। अभी इंटरनल ऑपरेशन में जो पॉइंट था आपका कि टेम्परेरी डाटा को जब भी स्टोर करना हो, तो मैंने बताया था टेम्परेरी डाटा को भी स्टोर करने के लिए बेसिकली यूज करेंगे स्टैक। ओके, क्योंकि जब भी कोई ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना हो तो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली हम स्टैक यूज करते हैं। उसका जो पॉइंटर, उसको जो पॉइंट करेगा, उसका जो एड्रेस होगा वो स्टैक पॉइंटर होगा उसको। ओके, सो BP व्हाट, बेस पॉइंटर, दिस इज व्हाट, स्टैक पॉइंटर। और आपके पास में इंडेक्स रजिस्टर, तो ये हो जाएगा SI। तो SI का मीनिंग हो जाएगा क्या, सोर्स इंडेक्स। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज DI। तो ये आपके हैं बेस, DI मतलब डेस्टिनेशन इंडेक्स, राइट, डेस्टिनेशन इंडेक्स। सो ये जो दो कैटेगरी हैं बेसिकली, इनको बोलते हैं क्या, पॉइंटर रजिस्टर। इनको बोलते हैं पॉइंटर रजिस्टर। और ये जो SI और DI, इनको बोलते हैं इंडेक्स रजिस्टर। ओके, तो ये बेसिकली यूज होते हैं फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन की। आगे स्टडी करेंगे बेसिकली कि है क्या, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको यूज किसका इनका करेंगे, बेसिकली फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन। ओके, so BP मतलब base pointer, so these are the pointer register and these SI and DI is what, index register. Okay, एक दूसरे टाइप का भी एक रजिस्टर है आपके पास में जिसको बोलते हैं सेगमेंट रजिस्टर। सो अभी आपने स्टडी किया बेसिकली रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर, बेस और इंडेक्स रजिस्टर। सो नेक्स्ट इज सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है 8086 का, मेमोरी सेगमेंटेशन। इट मींस पूरी मेमोरी को आपने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है बेसिकली। सो इसको बोलते हैं सेगमेंट रजिस्टर। ठीक है, पूरी मेमोरी को। सो आपके पास में एड्रेस लाइन जो है वो कितनी है, 20, राइट। सो द मैक्सिमम मेमोरी ओके दैट कैन is defined 2 to the power 20 means 1 megabyte. So the 2 to the power 20 memory locations are there and 2 to the power 20 is what, 1 megabyte. So it means पूरी एक पूरी मेमोरी है कंप्लीट। इस कंप्लीट मेमोरी है आपकी 1 मेगाबाइट की। और 1 मेगाबाइट में से आपने क्या कर दिया है कि कुछ पार्ट बना दिए, कुछ सेगमेंट बना दिए। ठीक है, तो वो सेगमेंट कौन कौन से हैं पढ़ते हैं। फर्स्ट सेगमेंट, first is what, CS, code segment. Code segment. Okay, and next is DS, means data segment. Then third part is SS, stack segment. Okay, and fourth one is ES, what, extra
segment. Okay, and fifth is what? Instruction pointer. ओके, सो इट मीन्स पूरी जो फिजिकल मेमोरी है उस मेमोरी को आपने क्या कर दिया कि एक डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में आपने डिवाइड कर दिया है। तो सेगमेंट में किस तरह, सो फर्स्ट आपका सेगमेंटेशन है कोड सेगमेंट। ओके, एंड द साइज ऑफ ईच सेगमेंट इज 64 KB। ओके, सो फर्स्ट सेगमेंट हुआ आपका कोड सेगमेंट। तो कोड सेगमेंट में बेसिकली क्या होगा? कोड स्टोर होगा। सो ये बेसिकली फीचर है माइक्रो प्रोसेसर 8086 का कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के लिए डिफरेंट सेगमेंट बना दिए। कोड अलग सेगमेंट में स्टोर होगा, डाटा अलग पार्ट में स्टोर होगा। तो बेसिकली कोड्स जिस सेगमेंट में स्टोर होगा, जिस पार्ट मेमोरी का जिस पार्ट में स्टोर होगा उसको बोलेंगे कोड सेगमेंट। उसका साइज कितना होगा? 64 KB। सिमिलरली डाटा एक अलग मेमोरी के अलग पार्ट में जाके स्टोर होगा। ओके, जिसको बोलते हैं डाटा सेगमेंट। सिमिलरली स्टैक सेगमेंट, तो अभी हमने पढ़ा था कि स्टैक होता क्या है बेसिकली कि टेम्पररी जब स्टोरेज मेमोरी है स्टैक, कि जब भी आप कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो टेम्पररी कोई डाटा आपको स्टोर करवाना है तो बेसिकली किस में स्टोर करवाएंगे? स्टैक में स्टोर करवाएंगे। तो वो पार्ट अलग होगा, है तो मेमोरी का पार्ट ही, बट कौन सी मेमोरी भी? टेम्पररी कोई भी डाटा, टेम्पररी मेमोरी है टाइप की है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या? स्टैक सेगमेंट। थर्ड इज नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट में क्या हुआ कि सपोज कोई भी डाटा या कोड डाटा स्टैक अगर आप जो भी सेव कर रहे हैं तो वो 64 KB से ज़्यादा अगर डाटा अगर एक्सेस करता है तो बेसिकली ये क्या है? बैकअप रखा हुआ है कि अगर सपोज एक्स्ट्रा सेगमेंट में क्या होगा? बेसिकली एक्सेसिव डाटा जो भी होगा तो उसको आप सेव करेंगे किसमें? एक्स्ट्रा सेगमेंट में, स्पेयर में रखा हुआ है बेसिकली ये। तो क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेगमेंट। सो नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बारे में हमने पढ़ा था बेसिकली। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वो उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास रहेगा और वो यहाँ पे वो भी अलग पार्ट में सेव होगा मेमोरी के। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी सेगमेंटेशन। ओके, सपोज आप एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि सपोज ये आपका मेमोरी है, ये आपका मेमोरी का पार्ट है, राइट। सो ये आपकी टोटल फिजिकल मेमोरी है और फिजिकल मेमोरी में से सपोज लेट की जो पर्टिकुलर कोई भी एक सेगमेंट के लिए डिसाइड कर लेते हैं। सपोज दिस इज 5000 एंड 0H बिकॉज 20 बिट का जो एड्रेस होगा। ओके, सो सपोज स्टार्टिंग हो रहा है सेगमेंट कोई 50000H से। ओके, देन जो एंड कब को होगा मींस आपको 64 KB ही डिफाइन है पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। तो बेसिकली एंड होगा कहाँ पे? 5FFFH। ओके, सो ये बेसिकली कोई भी एक सेगमेंट की रेंज हो जाएगी। तो 64 KB। ओके, इनका डिफरेंस कितना है? 64 KB है। तो ये FFF कैसे ऐड किया आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ओके, ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपको। चलो 1 KB। 1 KB से मीनिंग क्या है? 1 KB का मीनिंग है बेसिकली 1024 लोकेशंस और उसमें कितने डाटा स्टोर हैं? 8 बिट की डाटा स्टोर है। 1024 बाइट्स में, बाइट का मतलब 8 बिट। ओके, तो मतलब वहां पे 1024 लोकेशंस हैं और सपोज यहाँ पे 1024 लोकेशंस हैं ये, और हर लोकेशन में डाटा जो स्टोर है वो कितने बिट का है? 8 बिट का डाटा स्टोर है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं ये कि ये FFFH कहाँ से आया बेसिकली। ओके, सो सिमिलरली 1024। सो सपोज अगर दिस इज 0th लोकेशन, सो ये कौन सा लोकेशन हुई? बेसिकली लास्ट वाली जो लोकेशन होगी उसको क्या बोलेंगे? 1023 लोकेशन, बिकॉज टोटल लोकेशंस मेमोरी लोकेशंस आर 1024। सो ये तो क्या हुआ आपका डेसिमल में आपने डिफाइन कर रखा है, और इसी को ही अगर आप हेक्साडेसिमल में डिफाइन करें तो 1023 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो आप। सो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने पे आपके पास में क्या आएगा? 3FFH, कुछ इस तरह से आएगा। तो 1 KB मीन्स 1 KB किस तरह से डिफाइन करेंगे 1 KB को
कि सपोज आपके पास में 0 0 0 0 0 अगर कुछ इस टाइप का आपके पास में है, सपोज यहाँ से अगर स्टार्टिंग हो रही है और 1 kp का अगर आपको डिफरेंस लेना है तो इट मीन्स उसमें क्या कर दोगे 3FFH ऐड कर दोगे बेसिकली। सो नेक्स्ट होगा क्या 0 3FFH, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1 kp। सिमिलरली यहाँ जो डिफरेंस मैंने लिया है वो कितना है 64 kp। तो ये बेसिकली फंडा हुआ 64 के लिए क्या ऐड कर देंगे FFFH ऐड कर देंगे 64। जैसे मैंने बताया 1 kb के लिए ऐड करेंगे क्या 3FFH, और कैसे फाइंड आउट किया मैंने बता दिया अभी आपको। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे आपने ऐड करेंगे FFFH बेसिकली 64 kb के लिए फाइंड आउट कर सकते हो आप बेसिकली। ओके, सो नेक्स्ट, सो अभी हमने डिस्कस किया बेसिकली स्टोर्स द डाटा और स्टोर्स द डाटा में जनरल पर्पज रजिस्टर। सो हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं क्या सेकंड जो ऑपरेशन है आपका कौन सा इंटरनल ऑपरेशंस। इंटरनल ऑपरेशंस, सो इंटरनल ऑपरेशंस में फर्स्ट आपने स्टडी कर लिया डाटा स्टोर करना, स्टोरेज द डाटा, और नेक्स्ट है आपका क्या परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे विद द हेल्प ऑफ ALU। ओके, और ALU का जो साइज होगा बेसिकली वो क्या होगा 16 बिट ALU होगा आपके पास में। 16 बिट ALU क्यों होगा बिकॉज डाटा ही आपके पास में कितना है 16 बिट का है। तो एट ए टाइम डाटा प्रोसेस करने के लिए सिंगल क्लॉक साइकिल में मिनिमम 16 बिट को हैंडल करेगा एट ए टाइम। तो ALU भी कितने बिट का होगा 16 बिट का ALU होगा। ओके, देन C इज टेस्टिंग फॉर द कंडीशंस, और टेस्टिंग फॉर द कंडीशंस मैंने बताया था किसकी हेल्प लेके करेंगे बेसिकली फ्लैग। सो बेसिकली ये भी क्या है एक फ्लैग रजिस्टर होता है, दिस इज व्हाट फ्लैग रजिस्टर। ओके, तो फ्लैग रजिस्टर ये भी इसकी भी साइज कितनी होगी, इसकी साइज होती है 16 बिट की साइज होती है बेसिकली। ठीक है, आप 16 बिट साइज को अगर आप डिफाइन करें तो फर्स्ट कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज ये 16 बिट का आपका कंप्लीट 16 बिट का, तो कौन कौन से फ्लैग होते हैं अभी स्टडी करेंगे इसमें। सो फर्स्ट इज carry flag CF, then second bit is not used, then again next is what PF। ओके, आगे स्टडी करेंगे जब भी आप आगे इंस्ट्रक्शन वगैरह स्टडी करेंगे तो जस्ट आज केवल एक ओवरव्यू कंसीडर कर रहे हैं कि ये बेसिकली ऑपरेशंस होता क्या है, फ्लैग रजिस्टर होते क्या है बेसिकली, है क्या कैरी फ्लैग क्या है, P मीन्स पैरिटी फ्लैग। ओके, सो पैरिटी फ्लैग के बाद में नेक्स्ट इज आल्सो नॉट यूज्ड, then again auxiliary carry flag। okay, and then next bit is also not used, and this is what zero flag, or next is sign flag, and next is TF। okay, and next is IF। okay, direction okay, IF interrupt flag, trap, this is trap flag, IF interrupt flag, then उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन फ्लैग DF। ओके, एंड नेक्स्ट इज ओवरफ्लो फ्लैग, एंड रिमेनिंग आर नॉट डिफाइंड। रिमेनिंग कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। okay, remaining it is also not used, and remaining this is not used। okay, सो बेसिकली ये फ्लैग रजिस्टर कैरी फ्लैग CF मतलब होता है कैरी फ्लैग आपका, ठीक है, PF मतलब होता है पैरिटी फ्लैग, ACF मतलब होता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ZF मतलब होता है जीरो फ्लैग, SI मतलब साइन फ्लैग,
TF मतलब होता है आपका ट्रैप फ्लैग, ओके ओके। एंड नेक्स्ट इज IF, दिस इज IF इंटरप्ट फ्लैग। देन ये होता है आपका डायरेक्शन फ्लैग, ये बताता है आपको ओवरफ्लो फ्लैग। सो फ्लैग को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो हो गया आपका कंडीशनल फ्लैग, कंडीशनल फ्लैग। सो कंडीशनल फ्लैग में कौन कौन से फ्लैग आते हैं? बेसिकली कंडीशनल फ्लैग में आते हैं आपके कैरी फ्लैग, देन पैरिटी फ्लैग, देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, देन आपका आता है जीरो फ्लैग, और देन आपका आता है साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग, ओके। और नेक्स्ट एक टाइप का दूसरा फ्लैग की कैटेगरी है, उसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लैग। सो बेसिकली कंट्रोल फ्लैग में कौन कौन से फ्लैग आते हैं? ये तो हुआ डायरेक्शनल फ्लैग, देन इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग। ये तीनों फ्लैग आते हैं कंट्रोल फ्लैग की कैटेगरी में, ओके। सो कैरी फ्लैग मींस, कैरी फ्लैग का मीनिंग हुआ कि कैरी फ्लैग स्टार्टिंग फ्रॉम द कैरी फ्लैग, ओके। हम ये बेसिकली पूरा का पूरा वापस फिर से स्टडी करने वाले हैं, जस्ट केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। कैरी फ्लैग का मीनिंग, कैरी फ्लैग सेट और रीसेट कब होगा? जब भी आप एडिशन परफॉर्म करोगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे, मींस अरिथमेटिक ऑपरेशन जब भी आप परफॉर्म करोगे, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के टाइम जब भी कैरी जनरेट होगी तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट। सेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? 1, और रीसेट मतलब 0, ओके। पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा? पैरिटी, और ये बेसिकली एरर चेकिंग, और उस टाइम पैरिटी कोड भी आपने पढ़ा है, तो उस टाइम एरर आप बेसिकली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली, ओके। तो इवन पैरिटी, इवन ऑफ 1 पैरिटी होगी तब तो ये 1 सेट हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा? ऑड ऑफ 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा बेसिकली। ACF, ACF का मैंने बताया आपको ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ये बेसिकली BCD अरिथमेटिक जब भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे तब ये यूज होगा, BCD अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो BCD अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं ये आपको आना चाहिए। तो ये आज का आपका टास्क है कि बेसिकली घर पे जाके अभी आप BCD अरिथमेटिक ऑपरेशन देखेंगे कि BCD अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरह से करते हैं, ओके। ये आपने पढ़ भी रखा है बेसिकली, BCD एडिशन, BCD एडर भी आपने डिजाइन किया हुआ है, राइट। डिजाइन नहीं करना है, बेसिकली आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए BCD एडर। सो BCD एडर में बेसिकली जब भी कैरी जनरेट होती है लोअर निबल टू अपर निबल, सो उस टाइम जब भी कैरी जनरेट होगी तो ये कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा बेसिकली। जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? जब भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट अगर 0 होगा तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। साइन फ्लैग बेसिकली ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को बता रहा है बेसिकली, साइन फ्लैग, ठीक है। ये सिमिलरली ट्रैप फ्लैग जो है बेसिकली प्रोग्राम डिबगिंग के लिए यूज होता है। और इंटरप्ट फ्लैग बेसिकली नॉर्मली सेट इंटरप्ट, आगे हम स्टडी करेंगे बेसिकली सिमिलरली। और देन नेक्स्ट डायरेक्शन फ्लैग, ये बेसिकली डायरेक्शन को आपको बताएगा, ठीक है। डायरेक्शन फ्लैग बेसिकली दिस इज ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो मीन्स जब भी ओवरफ्लो होगा तब ये सेट हो जाएगा। ये सब पूरा हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और आपको डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग ये बेसिकली आप, जब मैं आपको एक एग्जांपल लेके आगे डिस्कस करूंगा तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लैग रजिस्टर की, बेसिकली फ्लैग किस तरह से, कौन कौन से फ्लैग होते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास में ऑपरेशन है वो है सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सो वो आप बेसिकली परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मैंने आपको डिस्कस किया था। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बेसिकली होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। सो जो भी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा उसका क्या रहेगा आपके पास में? एड्रेस रहेगा। तो ये बेसिकली डी एंड ई इज व्हाट? स्टोर द टेम्पररी डाटा। तो टेम्पररी डाटा जब भी आपको स्टोर करना होगा बेसिकली, तो आप बेसिकली यूज क्या करेंगे? स्टैक यूज करने वाले हैं, स्टैक। और स्टैक बेसिकली एक टेम्पररी मेमोरी है, उसके लिए आपको स्टैक सेगमेंट भी आपने पढ़ा है बेसिकली, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के टाइम आपके पास में एक
रीड राइट एक डिफाइन है, एक मेमोरी डिफाइन है स्पेशल टाइप की, तो उसको बोलेंगे क्या, स्टैक। और स्टैक बेसिकली वर्क करता है इस ऑपरेशन पे लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली। सो दीज आर ऑल अबाउट द इंटरनल ऑपरेशन। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेसिकली एक्सटर्नली और पेरिफेरली इनिशिएटेड ऑपरेशन। सो नेक्स्ट इज एक्सटर्नली और पेरिफेरली इनिशिएटेड ऑपरेशन। सो अभी आपने स्टडी किया माइक्रो प्रोसेसर्स इनिशिएटेड ऑपरेशंस, देन आपने स्टडी किया बेसिकली इंटरनल ऑपरेशंस जिसमें पेरिफेरल की रिक्वायर्ड ही नहीं है बेसिकली, बट नेक्स्ट इज व्हाट, पेरिफेरली और एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशंस। इट मीन्स इसमें ये बेसिकली ये जितने भी ऑपरेशंस होंगे एक्सटर्नली, जो भी आपके पास में पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, सो वो आपको उनकी हेल्प लेके बेसिकली वो ही इनिशिएट करेंगे इस टाइप के ऑपरेशंस। सो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशंस। रीसेट, और रीसेट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना हो तो ये भी क्या होगा, एक्सटर्नली पेरिफेरली इनिशिएटेड ऑपरेशन होगा बेसिकली। सो रीसेट जब भी होगा तो उस टाइम क्या होगा, सारे के सारे सेगमेंट रजिस्टर जितने भी हैं, सारे के सारे रीसेट में बेसिकली क्या होगा कि सेगमेंट रजिस्टर, सारे के सारे सेगमेंट रजिस्टर जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो। ओके, और जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा होगा वो सारे हो जाएंगे सस्पेंड, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर क्या हो रहा होगा, रीसेट हो रहा होगा, सस्पेंड ऑल द ऑपरेशंस। सो जो भी उस टाइम परफॉर्म हो रहे होंगे वो ऑपरेशन सस्पेंड हो जाएंगे। एंड कंट्रोल कोड सेगमेंट जो है वो सेट हो जाएगा आपका एफ 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 एच पे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाइवा वाइवा का भी क्वेश्चन है, ठीक है, सी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो ओके सिमिलरली रीसेट, देन रेडी, रेडी पिन भी कुछ इस टाइप का ही है कि ये भी क्या होगा, एक्सटर्नली इनिशिएटेड होगा बेसिकली। रेडी एक पिन, एक सिग्नल है बेसिकली जो भी आपको माइक्रो प्रोसेसर को बाहर से जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनसे या उनको उनके थ्रू आप माइक्रो प्रोसेसर को एक सिग्नल मिलेगा। सपोज रेडी पे अगर 1 मिलता है तो रेडी 1 का मतलब ठीक है माइक्रो प्रोसेसर रेडी है, ठीक है, वर्किंग करने के लिए। बट अगर 0 मिलता है तो इट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर को कौन सी स्टेट में जाना है, वेट स्टेट में जाना है, माइक्रो प्रोसेसर को वेट स्टेट में जाना है। ओके, देन नेक्स्ट लाइक इंटरप्ट, तो इंटरप्ट भी कुछ इस टाइप का ही है कि बेसिकली आगे हम स्टडी करेंगे कि इंटरप्ट क्या आता है, कि इंटरप्ट भी एक एग्जांपल है एक्सटर्नली पेरिफेरली इनिशिएटेड ऑपरेशंस का। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट एक्सटर्नली पेरिफेरली इनिशिएटेड ऑपरेशंस। Okay, so this is all about the microprocessors operations, basically different type के operations हमने study किए। और next हम 8086 के features और then pin diagram और architecture basically study करेंगे basically next lecture में। So आज हमने basically study किया कि different type के operations जो कि microprocessor इनिशिएट करता है, और कौन डिफरेंट टाइप के 3 ऑपरेशंस थे, और 3 ऑपरेशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी थी, वो हमने बेसिकली स्टडी किया। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।